Okay. Beta, well, we have already started with the current electricity and DC circuits. आज मैंने आप लोगों को ये कहा था कि we will be discussing about the LDR and thermistor. So let's just talk about the LDR first. तो आपके पास let's say LDR stands for light dependent resistor. Okay, so we need to know the symbol of an LDR. So the symbol of an LDR, it just looks like this. So this is actually the symbol of LDR. Okay, now beta, please remember that the resistance of an LDR is inversely proportional to the light intensity. So the resistance of LDR is inversely proportional to the light intensity. Okay. अब बेटा प्लीज रिमेंबर, लेट्स से अगर आपके पास ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस में जो लाइट इंटेंसिटी है दैट विल बी मैक्सिमम, बट लेट्स से इफ देयर इज डार्कनेस तो डार्कनेस में आपकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो लो होती है. So when the light intensity is low, the resistance of the LDR will be high. Similarly, when there is brightness in the room, light intensity is high, so the resistance of the LDR will be low. Okay, now let me just draw a circuit. So we have a battery and we have a fixed resistor and we have another fixed resistor and we have an LDR. Okay, so let's say this is, ये आपके पास LDR है, ये जो resistor, this is R1 and the other resistor is R2. Now R1 जो है, this LDR is in parallel with R2 और इनकी जो combined resistance है that is in series with R1. Okay, so basically अगर let's say if the current flows from positive towards the negative terminal, तो आपके पास ये करंट का पाथ है, बट जैसे ही करंट इस नोड पे पहुंचता है तो जो करंट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 एंड I2. तो जब करंट डिवाइड हो रहा हो तो इसका ये मतलब है कि दोस टू कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल, और अगर करंट एक ही पाथ से फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है वो सीरीज में, राइट. सो वी कैन से कि R2 and LDR is in parallel और इनकी जो combined resistance है that is in series with R1 and their combined resistance is in series with R1. अच्छा, अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा. So I'm basically going to draw a table so that you can do it without the calculations or with calculations. That is just totally up to you कि आप किस तरह से उसको सॉल्व करना चाह रहे हो. ठीक है. तो 19. अच्छा, तो आई होप दिस इज क्लियर कि R2 और LDR दे बोथ आर इन पैरेलल और इनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है दैट इज इन सीरीज विद R1. सो पहले मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है. लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट. सो क्वेश्चन ये है कि लेट्स से वी हैव दिस सर्किट. So we have this R1 resistor. Let's say इसकी resistance है 20 ohms और ये हमारे पास we have the LDR. Okay, so let's say
आपके पास जो ये जो दूसरा वाला फिक्स्ड रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 40 ओम्स। नाउ अगर मैं ये कहूं कि इन ब्राइटनेस the resistance of LDR is equal to, so brightness में उसकी light intensity high होती है तो resistance of the LDR is usually low. So let's say the resistance of the LDR is 10 ohms in brightness. So अब आपसे ये कहता हूँ कि the battery is of 24 volts and we have to calculate part 1, the total resistance of the circuit. We need to calculate the total current that flows through the circuit. So the total current will be, let's say it is I. और थर्ड चीज, अगर हमने वोल्टेजेस फाइंड करनी है, V1, this is V2, let me call this as V2 and this as V1. Okay, so we have to also find V1 and V2. अच्छा, सबसे पहले तो हमने कल सर्किट में कैलकुलेशंस के लिए पढ़ा था कि अगर तो दो रेजिस्टर्स लेट्स से दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर, दिस इज एलडीआर, ये एलडीआर का सिंबल, सो 1 over r t equals to 1 over r1 plus 1 over r2. So this is the formula to calculate the combined resistance of the resistors that are in parallel. So 40 ohm resistor is in parallel to the LDR. ये दोनों आपस में पैरेलल है तो मैं इन दोनों की रेजिस्टेंस यूज करूंगा. So 1 over RT is 1 over R1 is 40 and the resistance of the LDR is how much? That is 10 ohms. So अब आप इसको बेटा, you just have to put the expression on the calculator, या इसके अगर मैं denominator same करता हूँ, 4 times 1 is 4, 4 plus 1 is 5, so it's going to be 5 over 40, 5 ones are 5, 5 eights are, and at the end you have to take the reciprocal. तो reciprocal के बाद ये आ जाएगा RT will be 8 ohms. अब ये जो RT है, this is the combined resistance of 40 ohm resistor and the LDR. ठीक है? Okay. So अब अगर इसकी combined resistance मेरे पास 8 ohms है, तो the total resistance of the entire circuit will be the sum of 20 ohm, और इन दोनों ये जो parallel resistors है, इन दोनों की resistance, combined resistance 20 ohm के साथ ऐड कर देंगे. So total circuit की resistance क्या आ जाएगी? 20 plus 8 and we get 28 ohms. So this is how we get the first part. So अगर आपको ये total resistance calculate करने के लिए आता है, so that will be for 3 marks. ठीक है? 1 mark absolute for the final answer. ठीक है? 1 mark आपने इनकी जो combined resistance है वो करेक्ट कैलकुलेट की हो, और 1 मार्क आपने 20 और इनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे उनको ऐड भी करना. सो लेट्स डू द अदर पार्ट. अब सेकंड में वी नीड टू कैलकुलेट द करंट. तो करंट का फॉर्मूला कल हमने क्लास में डिस्कस किया था. करंट का फॉर्मूला होता है I is equals to V over R. So let's just use that formula. तो करंट के लिए पार्ट 2 में करंट का फॉर्मूला I is equals to V over R. बेसिकली V is equals to R वाला ही फॉर्मूला है जिसको आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो. तो I is equals to V over R. ओके, सो टोटल वोल्टेज, अब मैं इसको VT
and this is the total voltage. So the total voltage of the whole circuit is 24 and the total resistance of the whole circuit is 28. So अगर आप 24 and 28 को divide करते हो, so what do we get? So we get 0.857 amperes. अब आपको बॉटम में उसने यहाँ पे आंसर के लिए स्पेस दी हुई है and you have to round off the value to two significant figures, so that will be 0.86 ampere. मगर प्लीज बेटा, लेट्स से अगर आपने इसी वैल्यू को कोई अगले पार्ट में दोबारा यूज करोगे तो आप इसकी राउंडेड वैल्यू यूज नहीं करते, यू यूज द एग्जैक्ट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू फॉर दैट पर्पस. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. द सर्किट इज गिवन, ये 20 ओम का रेजिस्टर है एंड द अदर वन इज ऑफ 40 ओम और एलडीआर की रेजिस्टेंस दी हुई है ब्राइटनेस में. सो ब्राइटनेस में एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम्स. ओके, अब हमें फर्स्ट पार्ट में वी हैड टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू फिगर आउट कि कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में है और कौन सा रेजिस्टर उसके साथ सीरीज में है. सो बेटा, ये जो LDR and this 40 ohm resistor, they both are in parallel together. आप इनकी combined resistance calculate करने के लिए will use the formula 1 over RT equals to 1 over R1 plus 1 over R2. अच्छा, now we just put the values. इसकी 40 ohms और LDR की resistance 10 to make the denominators equal. या आप directly calculator में put कर लो. We'll get 1 over 8 and at the end we take the reciprocal of the answer. Okay, इससे इनकी combined resistance आ गई. Then you have to add this resistance into the fixed resistance which is 20. ये आपके पास total circuit resistance calculate होगा. Next part में we had to find out the current. Current का formula I is equals to B over R. So the voltage is 24 and the total resistance of the circuit is 28. You divide the values, you get 28 ohms. Okay. अच्छा, अगले में we have to find out the voltages V1 and V2. So voltages calculate करने के लिए we'll be using the formula V is equals to IR. Exactly. So let's just use that. So voltage का फॉर्मूला है V is equals to IR. अब उसके लिए बेटा हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन से रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहे. ओके, अच्छा, अब इफ वी जस्ट लुक एट द रेजिस्टेंस 20 ओम वाली रेजिस्टेंस को अगर हम गौर करें तो इसमें से टोटल करंट फ्लो कर रहा है व्हिच इज 0.857 एम्पेयर. तो अगर मुझे इसकी वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR. प्लीज रिमेंबर 1 मार्क अगर आप फॉर्मूला करेक्ट लिखते हो. सो do not forget to write down the formula as well. So the total current is 0.857 and the resistance of 20 ohm resistor से अब इसको मल्टीप्लाई कर दे. So 20 into 0.857. अच्छा, अब V2 निकालने के लिए बेटा, so this we get 17.1 volts and you can round it off and you get the answer 17 volts. अच्छा, V2 के लिए अब बेटा V2 is across the LDR and 40 ohm resistor both. ये इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस है. तो अगर आपने V2 कैलकुलेट करनी है तो आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस की कंबाइंड रेजिस्टेंस से टोटल करंट को मल्टीप्लाई कर दोगे. सो अगेन वी यूज द फॉर्मूला V is equals to IR. So the total current that flows through both of these resistors is 0.857 and the combined resistance was 8. ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? That will be around
sorry, 6.85, and if you just round it off to two significant figures, so that is almost 6.9 volts. और अगर आप बेटा मतलब अब क्योंकि 20 वाला इन दोनों के साथ मतलब सीरीज में है, तो आप अगर 24 में से 17.1 वोल्ट्स माइनस कर देते तो हमें डायरेक्टली भी वोल्टेज V2 पता लग सकती थी. So there is another way of finding V2, and that was कि total voltage में से we subtract 17.1, so we could have got 6.9 volts. Okay? Okay. तो ये अब आपके पास आ गया ये ब्राइटनेस के लिए. Now let's just try to do it for क्या कहते हैं डार्कनेस के लिए. ठीक है. अच्छा, अब आपसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये कहता है इन डार्कनेस द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर इज 60 ohms. So calculate the total resistance, the current V1 and V2. अच्छा, एक पार्ट और मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ मतलब बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इसमें हम करंट्स की भी कुछ वैल्यूज मतलब ये पैरेलल है तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, I1 कितना होगा और I2 कितना होगा. So let's just find out that as well. So I1 and I2. So 2 marks for the current and 3 marks for the voltage. 1 mark अगर आपने फॉर्मूला करेक्ट उसमें किया है और 1 mark for the absolute answers. Okay, so let's just find out the current as well. अगर मुझे अब करंट कैलकुलेट करना है तो लेट्स सी. करंट के लिए फॉर्मूला होता था I is equals to V over R ना. So we'll use that formula again. मगर प्लीज बेटा जिस ब्रांच का करंट निकालते हैं उस ब्रांच की रेजिस्टेंस और उस ब्रांच की वोल्टेज आप यूज करोगे. अगर आप टोटल करंट फाइंड कर रहे हो so you will use the total voltage of the circuit and the total resistance of the circuit. तो अब I1 जो है I1 flows through the 40 ohm resistor and the 40 ohm resistor and the LDR, they both are in parallel to each other. So इनके क्रॉस पैरेलल में हमें ये पता है कि जो वोल्टेज है दैट रिमेन्स द सेम, राइट. तो इन दोनों को वोल्टेज कितना मिल रहा है, दे गेट V2. सो करंट का फॉर्मूला वी विल यूज V2 ओवर 40. अब V2 हमारे पास कितना है, वी जस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ V2 दैट इज 6.86 डिवाइडेड बाय 40. इसी तरह अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना है तो बेटा I2 के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला V2 ओवर LDR की रेजिस्टेंस क्योंकि I2 LDR से फ्लो कर रहा है. ओके, सो V2 ओवर 40 की जगह अब we'll use the LDR resistance which is 10 or 6.86 divided by 10, so you'll get the values of the currents as well. So देखो बेटा ये मतलब कॉन्सेप्ट सारा वही चीज है जो हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट जो पढ़ा था. ठीक है, ये सारा वही है. ओके. अच्छा, अब इसका मैंने वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको एग्जाम में ना वर्डिंग में आता है, बट बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज इसमें बताऊंगा. मुझे दोनों करंट की वैल्यूज बताते हैं. 0.17 एम्पेयर्स एंड 6.8. इसको 0.86 था वो वैसे 0. देखो टोटल करंट वो 0.86 ना. ठीक है, तो ये उससे कम होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है. अच्छा, अब बेटा एक चीज अगर अब आपने इसमें एग्जामिन ये करनी है, दो बातें अब इसमें हमने ना कंक्लूड अभी करनी है. वो ये है कि पैरेलल में फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ. जितनी पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी करंट उसमें से उतना ज्यादा फ्लो करेगा. ठीक है, I'll write down the statement as well. So in a parallel circuit,
करंट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। उसका ये मतलब है जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर मैं I1 और I2 को कंपेयर करूं तो इसकी ब्रांच की रेजिस्टेंस है 40 और एलडीआर की रेजिस्टेंस है 10 और I2 की वैल्यू है 0.68 और I1 की करंट की वैल्यू है 0.17। ये आपको बेटा डायरेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है, कि इन अ पैरेलल सर्किट द करंट follows the least resistive path. So let me just write note in parallel circuit current follows least resistive path। अच्छा, follows least resistive path का मतलब ये है कि उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, least resistive path। और you can just say कि the lower resistance in parallel greater will be the current, greater will be the current। ओके, सो ये चीज है पैरेलल सर्किट के अंदर करंट हमेशा उस रेजिस्टर में से ज्यादा फ्लो करेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ये पहली बात हमें पता लग गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इन अ सीरीज सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको वोल्टेज उतने ज्यादा मिलेंगे। ओके, अच्छा, इन दोनों रेजिस्टर्स की बाइंड रेजिस्टेंस है वो 8 है। ऊपर वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 20 है। V1 हमारे पास आया था 17 वोल्ट और V2 हमारे पास आया है 6.9 वोल्ट। तो सीरीज के अंदर जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वोल्टेज उसके अक्रॉस उतने ज्यादा होंगे। ओके, ये चीज है। दूसरी चीज, इन सीरीज सर्किट, ठीक है, हायर द रेजिस्टेंस, हायर द रेजिस्टेंस more voltage across it। सो पैरेलल में जितनी रेजिस्टेंस कम होगी करंट उतना ज्यादा, सीरीज में जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ज्यादा। करंट सीरीज में सेम रहता है ना, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए मैंने पैरेलल के लिए करंट के रिस्पेक्ट से बात की है और सीरीज के लिए वोल्टेज के रिस्पेक्ट से बात की है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क का एक पार्ट आता है एग्जाम में और वो आपसे ये पूछेगा बेटा कि बताओ विदाउट अ कैलकुलेशन, इज गोइंग टू से विदाउट अ कैलकुलेशन you have to explain what happens to the voltage across the LDR and the current across the LDR if the LDR is moved from brightness to darkness। ठीक है, I'll write down the question, then we'll talk about that। So that was the part A that we did। Now let's just talk about the part B। Part B में वो कह रहे हैं कि without calculation you have to tell what happens to voltage and current cross LDR if it is moved from brightness
टू डार्कनेस। अब आपसे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेशन के बगैर बताओ what will happen to the resistor, the voltage and the current across the LDR if you move it from the brightness to the darkness। सबसे पहली चीज, अगर मैं इसको ब्राइटनेस से डार्कनेस में लेके जाऊंगा तो एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज होगी? सो दैट विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि डार्कनेस में लाइट इंटेंसिटी लो होती है और जितनी लाइट इंटेंसिटी लो होगी एलडीआर की रेजिस्टेंस उतनी हाई होती है। ओके, सो सबसे पहले वी विल से the resistance of LDR increases from brightness to darkness। so जैसे ही आप ब्राइटनेस से उसको डार्कनेस में लेके जाओगे so उसकी, अच्छा, अब अगली चीज ये हमने पहली बात बता दी। देखो एक चीज बड़ी सिंपल सी है, पूरे सर्किट में किसी एक रेजिस्टर की भी रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो वी कैन से टोटल रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। अच्छा, रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशन है। अगर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसकी जो करंट है वो कम होगा। मतलब ये V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला है। अगर मैं इसको लिखूं V ओवर I इज इक्वल्स टू R एंड इफ आई एम कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट तो मैं इससे ये कह सकता हूं कि करंट और रेजिस्टेंस दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम थर्ड नोट इसमें ये ऐड कर लेते हैं कि current and the resistance is inversely proportional। सो अगर आपके पास सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से करंट जो है वो आपके पास डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अच्छा, सो हम नाउ लेट्स जस्ट, तो अगर यहाँ पे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसकी वजह से आपके पास जो करंट है, करंट डिक्रीज होगा। तो अगर करंट डिक्रीज होगा, ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इसमें से जो करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उससे आपसे ये पूछा है कि बताओ व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द एलडीआर। अब देखो बेटा, एलडीआर की रेजिस्टेंस क्या हो गई है? इंक्रीज। अब एलडीआर एलडीआर और 40 ओम तो पैरेलल में थे। अगर एलडीआर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से इसमें से करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ इन अ पैरेलल सर्किट। तो इससे ये पता लगा कि जो एलडीआर है इसमें से आपके पास जो करंट फ्लो करेगा वो लेस करंट विल फ्लो। तो उसने पहली बात आपसे पूछी थी कि व्हाट हैपेंस टू द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एलडीआर। अब आप उसको ये बता दोगे कि करंट इन एलडीआर डिक्रीजेस, और उसकी रीजन क्या है कि एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ गई है और एलडीआर जो है वो 40 ओम रेजिस्टर के साथ पैरेलल में है, और पैरेलल में जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कम करंट उतना कम होता है आपके पास। ओके, तो करंट इन द एलडीआर विल डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टेल के व्हाट विल हैपन टू द वोल्टेज अक्रॉस द एलडीआर। अच्छा, अगर आप गौर करो, ये जो 20 ओम वाला रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। वैसे अब ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है कि कम करंट? अगर इसमें से कम करंट फ्लो कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि जो 20 ओम रेजिस्टर है
उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर 20 ओम रेजिस्टर के लिए वोल्टेज डिक्रीज होगा तो सीरीज में दूसरे वाले के लिए वोल्टेज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ओके, तो V2 विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। उसकी रीजन क्या है? करंट डिक्रीज होने से क्या होगा? करंट डिक्रीज होने से वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम डिक्रीज होगी। और क्योंकि 20 ओम और नीचे वाला सीरीज में है तो उसकी वजह से देखो, टोटल वोल्टेज तो इनके 24 रहने चाहिए ना, तो अब नीचे वाले को ज्यादा वोल्टेजेस मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि वोल्टेज अक्रॉस एलडीआर इंक्रीज। अच्छा, अब वही है कि मतलब मैं ये डायरेक्टली मतलब क्यों नहीं, देखो एलडीआर की रेजिस्टेंस भी चेंज हो रही है, एलडीआर का करंट भी चेंज हो रहा है ना, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये नहीं बता सकता था कि इनकी वोल्टेज में क्या फर्क होगा। इसी वजह से हमने पहले ऊपर वाले का एनालाइज किया है, फिर उसके बाद हमने नीचे वाले के लिए किया, ठीक है। ओके, तो आई होप कुछ मतलब ये चीज क्लियर हुई है। हम एक और क्वेश्चन करेंगे अभी इसी तरह का, उसमें मैं अब एक टेबल ड्रॉ करता हूँ और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज। ये जो पार्ट है ये आपको एग्जाम में अगर लेट्स से खाली करंट के बारे में पूछेगा तो 2 मार्क का, अगर खाली वोल्टेज के बारे में पूछेगा तो ये 2 मार्क्स का, तो मतलब इन टोटल आप कह लो कि ये 4 मार्क्स है, जिसमें आपने उसकी रेजिस्टेंस के बारे में एनालाइज करना है, आपने उसके करंट को एनालाइज करना है और आपने वोल्टेज को भी एनालाइज करना है कि व्हाट इज हैपनिंग टू ईच ऑफ देम। ओके, अच्छा। अच्छा, एक और चीज है जो लिंक है दैट विल जस्ट एंड इन आई गेस 3 या 4 मिनट्स में एंड हो जाएगा। तो आई विल शेयर द लिंक अगेन विद ऑल ऑफ यू, तो हम लोग आप लोगों ने उसको दोबारा रिज्वाइन कर लेना। ओके, अच्छा, so let's just do the next. Oh, let me just paste that again. Okay. तो अब हम एक और करते हैं क्वेश्चन, इट्स गोइंग टू बी सिमिलर टू द एलडीआर बट दिस टाइम अब मैं एक टेबल बनाऊंगा और मैं थोड़ा सा इसको जो है ना, ओके, सो द क्वेश्चन इज कि वी हैव दिस बैटरी और आपके पास ये एलडीआर है, ठीक है। और लेट्स से ये आपके पास एक फिक्स्ड रेजिस्टर है, इस फिक्स्ड रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है आर, एलडीआर की रेजिस्टेंस है आर एलडीआर, करंट में जो टोटल सर्किट में जो टोटल करंट है दैट इज आई, और जो सर्किट में टोटल वोल्टेज है दैट इज वी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाइट इंटेंसिटी, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V1 और फिक्स्ड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इज V2। अब लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और अब हम देखेंगे ब्राइटनेस और डार्कनेस के लिए सेपरेटली। ओके, वी विल राइट फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूं कि व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, देन वी विल एनालाइज कि व्हाट हैपेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, देन वी विल एनालाइज कि व्हाट विल हैपन टू द टोटल करंट, और फिर हम देखेंगे बेटा कि V1 और V2 पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये हम जनरली इसको वर्ड्स में जो है ना अभी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो ओके, सबसे पहले ब्राइटनेस में एलडीआर की रेजिस्टेंस क्या होगी? अगर ब्राइटनेस है तो एलडीआर की रेजिस्टेंस लो होगी, ठीक है। सो ब्राइटनेस में एलडीआर की रेजिस्टेंस कम है, तो मुझे ये बताओ कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? दैट विल आल्सो बी लेस लो, क्योंकि मैंने अभी बात की
चाहे सीरीज हो पैरेलल हो, किसी एक भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होती है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो ये यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लो। करंट हमारे पास क्या होगा, अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट हाई। अच्छा, अब मैंने एक और बात बोली थी कि सीरीज के अंदर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसको उतने ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे। तो एलडीआर और आर दे बोथ आर इन सीरीज। तो अगर एलडीआर की रेजिस्टेंस कम है तो इसकी वोल्टेज कम होगी, और इसकी वोल्टेज अगर कम है तो जो दूसरा रेजिस्टर है उसकी ऑटोमेटिकली वोल्टेज इंक्रीज होगी, तो इसकी वोल्टेज हाई। अब सेकंड में डार्कनेस में एलडीआर की रेजिस्टेंस हाई होती है, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगी,